Hello everyone. In this video, we will talk about the second type of sum that may be asked in the sitting arrangement. So the type 2 is circular arrangement. So मैंने type 1 में linear arrangement के बारे में बताया था, wherein we just to gather the information from the question and we depicted it to a line on a row in the pictorial view. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहां मैंने स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा while solving any question based on sitting arrangement in the aptitude exam. So let us start with the type 2, that is circular arrangement. So as the name suggests, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा जो हम सर्कल के थ्रू या सर्कुलर डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करेंगे. सो बेसिकली क्वेश्चन में दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें दिया होगा कि देयर आर 6% फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि देयर आर 6% सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द सेंटर. ठीक है, तो अब इस केस में अगर पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे देयर आर 4%. We have person 1, person 2, person 3 and person 4 facing towards the center. ठीक है, they are sitting in such a manner that they are facing towards the center. ठीक है, again we use this arrow वाला trick to understand. So we have this arrow pointing inside. So we have right of this person upward side and left towards the downward side. अगेन इस क्वेश्चन में सर्कल में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करने की. पर्सन अगर सेंटर फेस करे तो उसका लेफ्ट कहाँ आएगा, राइट कहाँ आएगा, इसलिए आपको मैं ये बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सकेंगे इजीली. नाउ इस पर्सन के लिए अगेन वी हैव द एरो फेसिंग सेंटर. सो वी हैव राइट टूवर्ड्स आर लेफ्ट एंड लेफ्ट टूवर्ड्स आर राइट. ठीक है, नाउ फॉर द थर्ड पर्सन अगेन we have left up in upward direction and right in downward direction, right? Now for this person this person is basically facing towards the north, right? So we have left here and right here, left towards our left and right towards our left. 4 person है, so basically प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे है वो he will face towards the center, that is north. This will face towards the center at the south. ठीक है, now let's see when they are facing in opposite direction. ठीक है, opposite direction मतलब if we have this is the center, so they are facing बाहर के साइड, opposite to the center. So again we have 4 persons, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, now let's see through this. So now we can see for this person he is facing outward, the arrow is outward. So we have left in upward direction and right in downward. ठीक है, now for this person facing towards south, north, we have left towards his left and right towards his right. ठीक है, now for this person who is facing away from the center, so we have right in upward direction and left in downward direction. And for the last person we have left towards our right, ठीक है, and right towards our left. ठीक है, so in this way we determine कि वो पर्सन का राइट साइड कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड कहाँ आएगा. सो बेसिकली मैंने 4% का मैंने बता दिया है. सिमिलरली हम अगर 8% अगर क्वेश्चन में दिया होगा देयर आर 8%, तो उसका भी मैंने डायग्राम दे दिया है ताकि आपको इजी हो लर्न करने के लिए कि लाइक अगर फेसिंग पर्सन आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू सेंटर, सो बेसिकली ये वाला डायग्राम आप यूज करोगे टू डिटरमाइन लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, राइट साइड कौन सा आएगा अगर पर्सन इज सिटिंग एट द प्लेस ऑफ ए और E और D और anywhere. And second अगर they are facing the center और there are 8%, so आप ये वाला डायग्राम यूज करोगे like according to the position you that you want according to the question. ठीक है, so ये डायग्राम आप याद कर लीजिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा. So let's start with the questions now of this type. So let's start with a basic question. ठीक है, एकदम बेसिक. So क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 girls A, B, C and D are sitting in a circle. ठीक है, सर्कल बना लिया हमने, 4 गर्ल्स बोला है तो 4 पोजिशन बना दिया इन अ सर्कल. B and C are facing each other. ठीक है, तो लेट्स टेक B and C. ठीक है, B और C का एक पॉसिबल पोजिशन ये हो गया फेसिंग ईच अदर. ठीक है, और B और C का दूसरा पॉसिबल क्या पोजिशन क्या हो गया, वी कैन हैव
बी सी, इधर भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स, कोई भी लो बात एक ही है। फिर नाउ क्या बोला है आगे, बी एंड सी आर फेसिंग ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। अब समझो मैंने ये वाला केस को कंसीडर किया, ठीक है, बी और सी आर फेसिंग ईच अदर, सो वी कैन हैव ए ईयर, डी ईयर, 4 गर्ल्स है, सो 2 ही पोजीशन और बी और सी फेसिंग ईच अदर है, सो बी यहां लो सी यहां लो, बात है कि दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, बट वी कैन हैव ए एंड डी ईयर, राइट। सो दोनों भी केस में ए और डी अपोजिट फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। सो मैंने लीनियर अरेंजमेंट में बताया था कि वी हैव टू स्टार्ट विद द क्लू एंड राइट द क्लू लाइन वाइज लाइन, बट इस केस में हम देखें कि एक ही सेंटेंस है, सो क्लू के बिना ही हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए मैंने क्लू लिखा नहीं। बट अच्छा प्रैक्टिस में हम हमेशा वी राइट द क्लू फर्स्ट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, बट इन दिस केस इट वाजंट नीडेड। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, they are saying which of the following is definitely true, right? So A is to the left of C, ठीक है, ये वाले केस में तो वर्क कर रहा है, बट अगर मैंने ये वाला केस लिया, we have C, B, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, सो अब A के C के राइट में आ गया ये, सो ऑप्शन A एलिमिनेट हो गया, D is to the left of C, सो इस केस में तो वर्क हो जाएगा, बट इस केस में राइट है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, ये केस में भी ट्रू है, ए एंड डी फेसिंग ईच अदर, एंड इस केस में भी ट्रू है, ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर, सो ऑप्शन सी इज अ ऑप्शन। डी को चेक कर लेते हैं, ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, ए इज नॉट इन बिटवीन बी एंड सी, जो कि हर एक केस में बी एंड सी के बीच में ए है ही, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एकदम बेसिक सम था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So 6 friends A, B, C, D, E and F are standing in a circle. ठीक है, we have a circle and we divide it into 6 parts, 1 2 3 4 and we can have 5 6 anywhere, ठीक है। तो क्या बोला है, let's write the clue statement wise, B is between F and C, B is between F and C, so एक ये possible हो गया, और सेकेंड क्या हो गया, we can have this। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप सर्कुलर अरेंजमेंट का सम सॉल्व करो, द मेन थिंग इज यू हैव टू फिक्स अ पॉइंट। आई मीन जब भी लाइक आपको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स से दिस पॉइंट इज सी और दिस पॉइंट इज ए, डिपेंडिंग ऑन दी क्लूज गिवन, ठीक है। वो कैसे हिंट मिलता है मैं आपको बता दूंगा। वी हैव द फर्स्ट क्लू एज बी इज इन बिटवीन सी एंड एफ, तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ए इज बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, सो एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो गया, राइट। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड क्या मिल रहा है, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एक ये पॉसिबल हो गया अगर इट्स फेसिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, और अगर साउथ में है तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्लू। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे वी हैव दिस एज द पॉइंट सी, राइट। तो अब क्या बोला है लोग ने, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, अब एफ इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। सो एफ, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी, सो बी या तो यहां एफ यहां पे आएगा, या तो एफ यहां पे आएगा, राइट। नाउ क्या बोला है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अगर मैं अभी ए यहां पे लिया, राइट, सो ए इज बिटवीन ई, सो ई यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, बट देन अगर यहां पे आया तो फिर यहां पे डी नहीं आ पाएगा, राइट। सो सी यहां पे हुआ, तो लेट्स अज्यूम एफ इज हियर, ठीक है। सो अब क्या बोला है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, सो बी यहां पे आ गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्लू क्या है, तो हमने ये क्लू सॉल्व कर दिया, एंड अब भी क्या देख रहे हैं हम कि एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। सो अब एफ हमारे पास यहां है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, लेफ्ट ये साइड आने वाला है, ये साइड लेफ्ट आएगा, ठीक है, लेफ्ट ये साइड आने वाला है, सो
F इज लेफ्ट ऑफ D, मतलब F के राइट में D आ गया, सो वी हैव D हियर, ठीक है। सो ये क्लू भी सॉल्व हो गया, एलिमिनेट किया। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग इस वी आर लेफ्ट विद दिस वन वेर इन दे से A इज बिटवीन E एंड D, सो D है यहाँ पे है, A इज बिटवीन, सो A यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आएगा, सो A इज इन बिटवीन E एंड D, ठीक है। हमारा बन गया सब क्लू वी हैव यूज्ड, एलिमिनेटेड। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु इज बिटवीन A एंड F, सो A एंड F के बीच का हमें चाहिए, हु इज इन बिटवीन A एंड F, सो आंसर इज D। सो मेनी टाइम्स लाइक आप क्वेश्चन को देख के भी ये पता कर सकते हो कि F का लाइक वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर पर्सन का प्लेस के क्यों आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बोला हु इज बिटवीन A एंड F, सो एक ही ऑप्शन दिया गया है, सो वी कैन इजिली डिटरमाइन कि A एंड F के बीच में कोई एक ही आने वाला है, ठीक है। सो जब मैंने ये डिटरमाइन किया कि F का पोजीशन कौन सा होगा, सो मैंने ये आइडिया लगाया था कि अगर A एंड F के बीच में एक ही बंदा है तो F इधर ही आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is a scenario based question, like I have discussed this type in linear also, but then again the same point, एक scenario के base एक ही question आएगा, but you can also expect 2 to 3 question based on single scenario. So let's see the scenario first. So we have 8 friends A, B, C, D, E, F, G, A and H. So total number of objects are 8 and their names are like A, B, C, D, E, F, G and H. आर सीटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। सो फेसिंग टूवर्ड द सेंटर और 8 फ्रेंड्स है, सो हमारा ये वाला केस हम यूज करेंगे, फेसिंग द सेंटर 8%, सो मैंने जो ड्रॉ करके दिया है ये वाला केस हम यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द हिंट एंड रीड द क्वेश्चन फर्दर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये जो ऑर्डर दिया है जरूरी नहीं कि वो इसी ऑर्डर में बैठे हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। फर्स्ट क्लू का मिला हमें D sits third to the left of A, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता है, इसलिए हम लाइक दोनों केस को लेके चलेंगे आगे। अभी सेकंड क्या बोल रहा है, E sits to the immediate right of A, ठीक है। तो सेकंड क्लू हमें मिल गया, E इमीडिएट राइट है, एक ये हो गया टू ए और एक ये हो गया, ठीक है। अगेन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन कि कौन सा डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर पर्सन इस बैठा हुआ है। अभी लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट हिंट, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अगेन हमें अगेन सेम केस वन जैसा, तो बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया और ये एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, फोर्थ क्या है, जी इज सेकेंड टू द राइट, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सॉरी एक ही आएगा सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ डायरेक्शन में। फिफ्थ, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है, तो सी बी एक साथ आएंगे या फिर बी से एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, सी 6 हिंट क्या, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच है उसके थर्ड लेफ्ट पे सी है, इफ द डायरेक्शन इज नॉर्थ, एंड अगर साउथ है सो वी हैव दिस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अज्यूमिंग अ क्वेश्चन, लाइक वी हैव टू फिक्स अ पॉइंट, सो लेट्स मेक अ सर्कल। तो वी हैव 8 points, 8%, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ C, लेट्स स्टार्ट विथ द लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्लू दैट वी हैव, दैट इज C। तो हमने C को यहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब C का दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सो वी हैव C हियर इन द प्लेस ऑफ E, सो लेफ्ट इज टू आवर लेफ्ट एंड राइट इज टू आवर लेफ्ट, राइट। सो अब ये ऑप्शन फिफ्थ क्या बोल रहा है कि C is an immediate neighbor of B, so like B का पोजीशन कैन बी या तो फिर इधर, ठीक है। अब लास्ट क्या है, C is third to the left of H, ठीक है, हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अब लेफ्ट में जाना है, मतलब C यहाँ पे तो 1 2 3 H के पोजीशन में आएगा ऊपर, राइट। सो वी हैव, सो C is
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब सी एच के लेफ्ट साइड में है, मतलब एच सी के राइट साइड में होगा। लाइक अगर एच यहाँ पे एच यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन में, सो एच का लेफ्ट इज डाउन साइड राइट, सो वी हैव 3 पोजिशन डाउन 1 2 3, सो वी हैव टेकन सी ई के पोजिशन में, सो वी हैव टू मूव 3 टूवर्ड्स द राइट ऑफ सी, तो एच का पोजिशन यहां आ गया, ठीक है। तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर अब क्या बोला है, बी ये वाला क्लू बी वाला, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और अभी हम यहां से बोल सकते हैं कि बी और जी के बीच में कोई एक ही वैल्यू है फोर्थ हिंट से। सो बी और जी के बीच में कोई एक ही वैल्यू है। सो अगर मैंने बी यहां पे लिया, जी कैन बी हियर राइट, और अगर मैंने बी यहां पे लिया तो जी कैन बी हियर। सो अभी ये हिंट लाइक श्योर नहीं है, इसलिए हम ये वाला हिंट यूज नहीं करेंगे। अब लेट्स सी द थर्ड हिंट wherein they are say it is saying that B और D के बीच में दो ये है पर्सन है। सो मैंने B यहां पे लिया, सो 2 पर्सन होंगे फिर D आएगा, एंड अगर मैंने B यहां पे लिया 2 पर्सन होंगे D आएगा, ठीक है, ये भी वैलिड है। नाउ वी हैव E and A, सो लेट अस अज्यूम द पोजीशन ऑफ B, B and G वाला B यहां पे लेते हम, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि बी का पोजीशन यहां पे है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लू वी हैव जी हियर, बिकॉज बी एंड जी के बीच में कोई एक ही पर्सन है राइट, एंड बी एंड सी आर द इमीडिएट नेबर, ठीक है, सी एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी अब, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ वी हैव बी एंड डी के बीच में दो पर्सन आ सकते हैं, डी का वैल्यू यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, ठीक है। बट अब अगर हम देखेंगे डी और ए के बीच में भी 2 है, 2 पर्सन राइट। सो अगर मैंने डी यहां पे लिया तो वी कैन हैव 1 2 एंड ए हियर राइट, बट अगर मैंने डी यहां पे लिया, सो 1 2 वी कैन नॉट हैव अ ए हियर, 1 2 वी कैन नॉट हैव अ ए हियर, सो डी का पोजीशन विल बी दिस, ठीक है। सो वी हैव 1 2 पोजीशन के बाद अ ए, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ ये सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ई एंड ए आर द इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। सो ए एंड ई आर द इमीडिएट नेबर्स, एंड कोई ऑप्शन ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। तो अब वी हैव ए हियर, इमीडिएट राइट मतलब हमें इस डायरेक्शन में नीचे आना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ई हियर, ठीक है। अब बचा क्या, खाली एफ, ठीक है। बी is to the left of D. Before that, where was this? C is the immediate neighbor. Okay, so सभी हमने यूज कर लिया है, हर एक ऑप्शन हमने यूज कर लिया है, ठीक है। बी का पोजीशन कैसे मैंने डिटरमाइन किया, अगर बी यहां पे लेता मैं, तो डी विल बी हियर एफ के जगह पे, तो पॉसिबल नहीं था पहले, सो इसलिए बी का पोजीशन यहां पे आया, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। सो नाउ वी हैव द सर्कल एंड सभी ऑप्शन भी एलिमिनेट, क्लू भी एलिमिनेट कर दिया है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में कौन है, एच, सो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, 3 of the following 4 are like in a certain way based on the information given above and so form a group which is one of that does not belong to that group, ठीक है। अभी ये लोग ने क्या दिया, डी, फर्स्ट ऑप्शन इज डी सी, ठीक है। सेकेंड इज ए एच, वी हैव डी सी ए एच, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि दोनों के बीच में एक एक एलिमेंट है। देन वी हैव ई एफ, ई एफ अगेन वी हैव अ ए इन बिटवीन, एंड लास्ट ऑप्शन इज सी बी, so CB are immediate neighbors, so option D is the correct option for this particular question. Who amongst the following is sitting second to the left of H, ठीक है। H अभी यहां पर है, मतलब B के पोजीशन में, अब लेफ्ट में आना तो हम नीचे आएंगे, तो सेकेंड इज 1 2 D का पोजीशन, ठीक है। सो वी हैव टू कम डाउन 2, तो 1 2 इज G, सो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
Who among the following are immediate neighbors of G? We have G here. So C and D are the immediate neighbors. Immediate मतलब बाजू वाले. So we have C and D as immediate neighbor. So option C, that is DC, is the correct option. So I hope आपको अभी circular arrangement से पता लगे how we remove the clue, how we fix a point and how we proceed for the question ahead. ठीक है, let's see more examples so that आपको और clear होगा. L, M, N, P, Q, R, S, T are sitting in a circle and playing cards. So पहला हिंट पहला क्लू क्या है? N who is the neighbor of P is not the neighbor of R. ठीक है, so N का पोजीशन could be this or this depending upon the direction. ये पहला हिंट हो गया. सेकेंड हिंट क्या है? N is not the neighbor of R. N is not the neighbor of R. ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है. Q is second to the left of R. थर्ड क्लू क्या है? Q is second to the left of R. So we have R. We have Q to the second. Sorry, I took third. So second is one place missing. Then we have this depending to the right, depending upon if the person is facing towards the south direction. And the last hint, N is second to the left of S. So again we can have two possibilities. Second है तो again S N, and we have S N depending upon direction. Who is the neighbor of M? So we have S M as the neighbor. ठीक है. Now let's draw a circle. All right. So I have told that we have to fix this points. There are 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So I have 4, 5, 6, and 7. Okay, it will work. So let's fix a point. So let's fix this P first. So let's say we have a P. We can take anyway. We have a P here. N is a neighbor of P. ठीक है. So N could be here or here. ठीक है. Now R, अगर N यहां पे है तो R यहां पे नहीं आ सकता, right? And then we have अगर यहां पे if we took N here, right? If we took N here, so we will have R here, right? Then according to this we have this option eliminated and this is also eliminated. ठीक है. Now we have Q and R के बीच में एक ही है. Irrespective of direction we cannot have a Q here, so we had a Q here. ठीक है. अभी और क्या बोला है? N और S के बीच में एक ही बंदा है, so N और S यहाँ पे है, so we have a S here. ठीक है. लास्ट हिंट क्या था कि ये दोनों नेबर है, so we have a M here. नेबर है इसके लिए, so the one position is only left, so we will have a L here क्योंकि वही बाकी है. ठीक है. सो जरूरी नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर आंसर है, क्योंकि मैंने P का पोजीशन यहाँ लिया, N का पोजीशन यहाँ लिया, N फिर R यहाँ पे आया. बहुत लोग होंगे जो P का पोजीशन यहाँ लेंगे, N यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा. सो वो भी एक वैलिड केस है. सो दोनों केस वैलिड है, दोनों से आपको सेम आंसर आएगा. बट मैंने P का पोजीशन यहाँ लिया, N का यहाँ लिया, R का यहाँ लिया. यू कैन ऑल्सो टेक P का पोजीशन एनी वे यू वॉन्ट. R का पोजीशन, इफ यू टुक P का पोजीशन हियर, यू वांट टू टेक N का पोजीशन हियर, तो R का पोजीशन यहाँ आ जाएगा. आपको जैसे भी जो भी पोजीशन चाहिए आप वो चूज कर सकते हो. बट द थिंग इज जस्ट यूज द हिंट एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू विल लैंड ऑन द राइट आंसर. ठीक है. लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ. सिनेरियो बेस्ड था ये भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है. Q इज द नेबर ऑफ S एंड L. Q इज द नेबर ऑफ S एंड L. ठीक है, राइट है. M इज द नेबर ऑफ S एंड L. M इज द नेबर ऑफ S बट L का नेबर नहीं है वो. R is the neighbor of P and M. R is the neighbor of P but M का नहीं है neighbor, so eliminated. L is the neighbor of P and Q. L is the neighbor of Q but P का नहीं है, so option A ही हमें अभी तक मिला सही, so option A is the right answer. Let's see the next question. Which of the following pairs has a second person sitting second to the right of the first person? ठीक है. Which of the following, let's understand the question. Which of the following pairs has a second person sitting second to the right of the first person? ठीक है. So ऑप्शन क्या है? R and M. पहली बात तो ये पेयर ही नहीं है, so eliminated.
आर एन एम है, तो सॉरी वो लोग ने पेयर दिया है आर और एम का. सो हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द, सो वी हैव एम हियर. नाउ अभी अकॉर्डिंग टू दिस लेट मी शो द डायग्राम. सो वी हैव राइट हियर, बट क्वेश्चन में लेफ्ट पूछा है. सो ऑप्शन पर्सन सिटिंग टू द राइट है, ठीक है. आर एम एलिमिनेट हो गए. एन क्यू दिया है, अब एन क्यू कहाँ है, एन क्यू यहाँ है. सो अब क्वेश्चन क्या है, हैज द सेकेंड पर्सन, ठीक है. सो सेकेंड क्या है, क्यू टू द राइट, बट राइट इसका यहां हो जाएगा, तो राइट इज पी सेकेंड पर्सन, सॉरी आर सेकेंड पर्सन हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्यू एन एस. सो वी हैव क्यू एन एस एडजेसेंट है, वैलिड ही नहीं है. एन एंड पी वी हैव एन एंड पी अगेन एडजेसेंट है, वी हैव ऑन द सेकेंड पर्सन. सो ये भी एलिमेंट होगा ऑप्शन. सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दिस. Which of the following pairs has the first person sitting third to the left of the second person? ठीक है, first person sitting to the left of the second person, ठीक है. So R and N है, अभी R and N है, ठीक है. क्या पूछा है, थर्ड पूछा है, तो ये लोग के बीच में एक ही है. Like we have P here and third 1 2 3 will be S. So ये ऑप्शन एलिमेंट होगा because we wanted N here, right? S and L, we have S and L. So if we go this way side, so we have 1 2 second position पे है, won't work because we want 3 position. 1 2 3 यहाँ पे हमें P मिला, so again valid नहीं है. S and R, ठीक है. अब राइट बोला है, तो इसका राइट यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है. So we have 1 2 3, yes we are getting R on the third position. So option C we got correct. Let's see option D, N and L, ठीक है. अब N and L है, सो वी हैव लेफ्ट हियर, राइट हियर. सो वी हैव टू मूव राइट 1 2 3, फोर्थ पोजीशन पे L आ रहा है, सो वोंट वर्क. सो ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L? अभी हमें L का पोजीशन जानना है. सो टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, वी हैव राइट ऑफ R हियर, करेक्ट. सॉरी, वी हैव द लेफ्ट ऑफ R हियर. So option A is eliminated. We have right here and left here. So option A is eliminated. Second to the left of M, we have M here. So we have R, Q and L. So Q is on the second position. So it's eliminated. To the immediate right of Q, so we have Q and L. ठीक है. अभी Q इधर है, that is facing north. So हमारा राइट इधर आ जाएगा ऊपर साइड और लेफ्ट डाउन साइड आ जाएगा. तो यस, ऑप्शन सी से हमें आंसर मिल रहा है. सो क्यू इज एल इज इमीडिएट राइट टू क्यू. लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन, बिटवीन एम एंड आर. एल इज बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है. क्यू एंड आर के बीच में है. सो ऑप्शन डी भी एलिमेंट हो गया. सो आई होप ये सब भी आपको समझा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है जहां की दोनों का फ्यूजन है, वेरिन देयर आर पर्सन हु आर फेसिंग द सेंटर एंड देयर आर पर्सन हु आर नॉट इवन फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. V, U and T are sitting around a circle. A, B and C are sitting around the same circle, ठीक है. तो टोटल कितने हो गए, 6 लोग हो गए टोटल, ठीक है. सो नाउ let's see the question further. A, B, C are sitting around the same circle but 2 of them are not facing the center, ठीक है. सो सबसे पहले मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं कि B and C ये लोग फेसिंग अवे हैं, ठीक है. दे आर नॉट फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. सो अब दे आर फेसिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. नाउ लेट्स सी द क्लूज. V is second to the left of C. So first clue हमें क्या मिल रहा है, V can be, this is a possibility or this is a possibility. Second to the left of C. So अगर north facing है तो we have V second to the left of C. South facing है तो we have opposite होता है, we have C and V, ठीक है. ये फर्स्ट क्लू हो गया. सेकेंड क्या दिया वो लोग ने, U, ये होगा U is second टू द राइट ऑफ ए, ठीक है. वी हैव ए यू, ठीक है. सेकेंड टू राइट ऑफ ए अगर नॉर्थ फेसिंग है, एंड अगर साउथ फेसिंग है तो वी हैव दिस
पर्टिकुलर ऑप्शन. सो हमेशा दोनों ऑप्शन लिखो ताकि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन वी कैन चूज द पर्टिकुलर ऑप्शन. अभी थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये हो गया बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी. ठीक है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सो 1 2 3. ठीक है, एक पॉसिबल ये हो गया. एंड अगर साउथ में अगर पर्सन फेस कर रहा है तो वी हैव दिस पॉसिबिलिटी, राइट. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्लू. सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. अगेन C is second to the right of T, so second position. If the person is facing north, and if south, then we have this option. Let's see the fifth one. A and C are not sitting together, so we don't have A and C together in any of the ways. Okay, we have all the clues now. Let's draw a circle. So we have 1 2 3 4 5 and 6 people. Right, so let's fix point C first. So let's say C मैंने यहाँ पे फिक्स किया. ठीक है, so A and C, A यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा. So this position won't contain A, this position won't contain A. ठीक है, now let's see the very next fourth clue, that is C and T are where is the question? C is second to the right of T. ठीक है, अब C यहां पे है, अब T के राइट में मतलब C के लेफ्ट में T हुआ, राइट. सो वी आर फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, सो लेफ्ट यहां होगा, राइट यहां होगा. अभी इसके थ्रू हमें मालूम पड़ा कि ये वाला वैलिड है, सॉरी हाँ मतलब ये वाला वैलिड है क्योंकि T नॉर्थ फेसिंग है. नॉर्थ फेसिंग के लिए ये कंडीशन था, तो T विल कम हियर. वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. नाउ लेट्स सी द बी वाला, बिकॉज टी और बी रिलेटेड है. सो इसका क्या है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के राइट साइड में बी आएगा, राइट. तब भी बी विल बी टी विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ बी. ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बी विल बी हियर. ठीक है, सो वी ऑल्सो वर्कड ऑन दिस एंड दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. नाउ दे आर सेइंग दैट C एंड V के बीच में कोई एक ही पोजीशन है. ठीक है, यू कैन गो विद द डायरेक्शन एज वेल. सो द फर्स्ट इज फेसिंग ऑपोजिट. V is second to the left of C, so we have C here. So V is second to the left of C. सो वी कैन सी अगर C और V के बीच में एक ही बंदा है, सो यहाँ पे वी कैन नॉट हैव V बिकॉज T का पोजीशन ऑलरेडी है. सो यहाँ पे वी पुट अप V बिकॉज वी कैन हैव B एज इन बिटवीन C एंड V. ठीक है, सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नाउ वी हैव A एंड U. वी कैन नॉट हैव A हियर अकॉर्डिंग टू फिफ्थ ऑप्शन, सो वी हैव A हियर एंड U हियर. ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया. अब वी आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस. So let's see the question. Which of the following is not facing center? ठीक है, so हमने पहले ही assume किया BC is facing away, so option C. Which of the following is the position of T in respect of B? Position of T in respect of B. B यहां पर है, T यहां पर है. ठीक है, let's see the option third to the right. पहली बात तो B का right will be this and left will be this. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. सो सेकेंड टू द राइट नहीं, इट इज थर्ड टू द राइट. थर्ड टू द लेफ्ट अगेन नॉट. वी हैव फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द राइट, ऑप्शन ही नहीं है. फोर्थ टू द राइट नो. लेफ्ट 1 2 3 4, सो द ऑप्शन विल बी fourth towards the left. ठीक है, we have right in upward direction and we have to move 1 2 3 and 4. so यहाँ पे हमें T का वैल्यू मिल गया. What is the position of A in respect of U? ठीक है, A यहाँ पर है, U यहाँ पे है, so this will be right and this will be the left according to the circle I have given. What is the position of A with respect to U? Second to the left.
So we have, sorry, we will have, they are facing the center, right? They are facing towards the center. So we will have left, and A is facing towards the center. Okay. So we have left, right? So we have second to the left. Yes, because you can see it is T and U. So second to the left, second to the right. No, it is B. Third to the right, 1, 2, 3. It is C. None of this. So option A is the correct option. So I hope you have understood the question I have taught and the tricks. These are some of the practice problems that you can practice very well. And I have given only one scenario based question, but please practice as much as you can. And if you have understood all the concept, please like the video. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पूछिए. एंड अगर और ये सब क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट थ्रू सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं. सो प्लीज इफ यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो. थैंक यू.